Hello friends, the last time we have discussed about the refraction by one curved surface. That means related with the lens when the ray is entered from rarer to denser medium for only the one surface. Think about the first surface of the lens. Related with that, we have discussed the equation for refracted by one curved refracting surface, that is minus eta 1 upon u plus eta 2 by v is equal to eta 2 minus eta 1 upon r. Here remember that eta 1 is the refractive index in which object is placed, मतलब जहाँ पर object उसी का refractive index, and eta 2 is the refractive index where image is formed, मतलब जहाँ पर image distance ऊपर उसी का ही refractive index, and eta 2 minus eta 1 upon r. That equation already we have derived, and which is most important equation for one curved refracting surface. Now, today we are going to discuss about the lens. Then what we can say about the lens? Then when we draw the diagram for the lens, it is like this, either for concave or for convex. So this is called convex lens, and this is concave lens. Then we can say यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी मटेरियल होगा, मोस्ट प्रोबेबली द लेंस मेड अप फ्रॉम ग्लास, तो ये ग्लास मटेरियल होगा. देन वी कैन से द डिवाइस which is covered by the refracting surface and image can be formed, then this device is called lens. That means the device which is covered or bounded by the surfaces and that can form image, it's called lens. Here दिस टाइप ऑफ लेंस पर्टिकुलरली अगर इसका नाम दे दे, देन इसको दो सरफेस है, इसको बोल सकते हैं हम बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोल सकते हैं हम बाई कॉन्केव लेंस. अगर इसी लेंस को हम ऐसे वर्टिकली कट कर दे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें वन साइड. दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ऐसे यहां पर इसको कट कर दे, इसको बोल सकते हैं हम प्लेनो कॉन्केव लेंस. ये सभी टाइप का जो भी लेंसेस है उसका हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है. एंड स्पेशली टुडे आवर इंटरेस्ट टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द लेंस एज ए लेंस मेकर्स फॉर्मूला. Lens makers formula. For the lens makers formula, consider one thin convex lens which possess two surfaces. अगर हम ऐसे थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन कर दे, then the first surface we can say ABC and another surface we can say ADC. Now here we place the any object, then the one ray which is incident on the surface ABC, which is refracted by the surface ABC, and again it is refracted by the surface ADC, and the image
can be formed at point I. Then the I is the image of point like object O. Then here we can say the ray is refracted twice, first for surface ABC and another for the surface ADC. अब अगर इसको हम 1/1 सोचे, मीन्स दिस इक्वेशन फॉर one curved refracting surface, then related with the one curved refracting surface, just consider the surface only ABC. ये सरफेस को ही सिर्फ कंसीडर करो, मतलब यहां पर कोई भी ऐसे ऐड नहीं है, सेकंड सरफेस है ही नहीं, तब हम बोलेंगे दिस इज सरफेस ABC and here point like object O. ये कोई भी इंसिडेंट रे, यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर द रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta1 and here the ray enter from rarer to denser, it bends towards the normal and suppose it form at image at point I1, therefore image is in the refractive index of eta2. तो यहाँ पर ये बोल देंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, से एज ए R1 because for the two refracting surface there are two radii of curvature, that's why it is R1. अब ये हमारा इमेज डिस्टेंस से एज ए V1. Then from earlier equation what we can say, for the surface ABC the equation like minus eta1 upon U plus eta2 upon V1 plus is equal to eta2 minus eta1 upon R1. The equation is clear. Object is in the refractive index of eta1, image in eta2. So from one curved surface, image at V1, that's why V1, and for the two refracting surface, two radii of curvature, this is for R1. Now think about the second refracting surface. The second refracting surface ADC. This is our second refracting surface ADC. तो here दो सरफेस है, तब ऐसा बोलेंगे कि इमेज फॉर्म बाय वन कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस विल बी एक्ट लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस. क्योंकि अगर ये जो लेंस है, थिन लेंस का ही हम बात करें, तब हमारे पास ये हमने एक कर्व्ड सरफेस लिया, यहाँ पर हम ये सरफेस को ऐसे बंद कर दे लाइक ADC, तो हमारा लेंस हो जाएगा यहाँ पर. लेकिन हम 1/1 सोचे, तब अगर इस सरफेस से ये जो इमेज मिली वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है. यहाँ से एक हमें नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि whenever two lenses are there, at that time the image formed by first lens will be act like virtual object for second lens. Here two surfaces are there, that's why image formed by first surface, that is I1, will be act like virtual object for second one, और वो सेकंड सरफेस उसका ऐसे फाइनल इमेज ऐसे I1 है. तब अगर ये जो सरफेस है यहाँ पर ही हम बंद कर दे तो दूसरी सरफेस हो जाएगी ADC. तो कंसीडर द सेकंड सरफेस ADC, और
ये जो रे आ रही है वही ये सेम रे है। अब अगर मीडियम सेम ही है एज ए ईटा 2, तब अगर मीडियम खत्म ना हो तो उसकी इमेज यहां पर होगी एट I1। जस्ट कंसीडर अगर इसको हम बंद कर दे तो वहां पर ये जो मीडियम है वापस जो एयर होगा वही आ जाएगा। लेकिन अगर ये मीडियम ही सोचे सेम मीडियम, देन it is I1 now due to the second refracting surface and now the ray enter from denser to rarer, इसीलिए इसका रिफ्रैक्टेड रे यहां पर मिलेगा एंड इट्स फॉर्म इमेज एट पॉइंट I। तब यहां कहीं पर भी ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो C। अब अगर ऐसा अलग अलग बोलना है तो ये C1 तो ये C2 और तो ये नॉर्मल हो जाएगा और ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, फिर C से D का फाइनल इमेज V1 और ये हुआ ये V और ये V1, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं कि B से I1 ऐसे ही D से I1 इज V1। For the second surface, the image formed by first surface will be act like virtual object for the second surface। मतलब for the second surface के लिए I1 object हो जाएगा and I is the final image। Now for the second surface we can say object is in the denser medium। देखो ये हमने डॉटेड लाइन की है तो डॉटेड लाइन इंडिकेट कि रे रिफ्रैक्टेड नहीं हुआ। रिफ्रैक्ट कब नहीं होगा? इन द सेम मीडियम। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज इन ईटा 2 एंड इमेज इज इन ईटा 1। तो इसी इक्वेशन में अब जहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे वहां पर ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब माइनस ईटा 2 अपॉन V1 प्लस ईटा 1 अपॉन V इज इक्वल टू ईटा 1 माइनस ईटा 2 अपॉन R2, क्योंकि अब ईटा 1 ईटा 2 को रिप्लेस कर देंगे। फॉर द सेकंड सरफेस ऑब्जेक्ट जो V1 डिस्टेंस पर है वो ईटा 2 में है, इसलिए ईटा 2 अपॉन V1 इमेज इज इन ईटा 1। दैट्स व्हाई ईटा 1 अपॉन V और यहाँ पर ईटा 2 माइनस ईटा 1 है, इसलिए ईटा 1 माइनस ईटा 2 अपॉन R2। ये बोलो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में अब अगर सोचे कि अबाउट I1 फॉर द 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर ये 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कोई ऐसे हमें ऑब्जेक्ट बनाया मतलब दिस इज आवर लेंस, एट दैट टाइम वी कांट गेट इमेज I1 क्योंकि वो एक सरफेस हो तो ही हमें मिलती है, बाकी 2 सरफेस है तो डायरेक्ट इमेज हमें I पर मिलेगी। तो इक्वेशन में जो V1 है वो हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। तब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बाय एडिंग 1 and 2 because our interest to derive lens makers formula। दैट्स वाई ऐड कर देंगे तब माइनस ईटा 1 अपॉन यू, ये और ये ऐड करेंगे तो कैंसल, प्लस ईटा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन R1 प्लस ईटा 1 माइनस ईटा 2 अपॉन R2। यहाँ पर ईटा 1 कॉमन निकाल दो तब ये होगा माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो देन इट इज ईटा 2 माइनस ईटा 1। ये तो है ही, यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों का ऐसे साइन चेंज, दैट्स व्हाई ये प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 और इन दोनों में से
ईटा 2 माइनस ईटा 1 कॉमन निकाल दो, देन रिमेनिंग 1/r1 और ये माइनस हो जाएगा 1/r2 एंड ईटा 1 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में से डिवाइड में जाएगा, देन 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पर अगर हम सोचे कि इफ u इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तब जो v मिलेगा वो हमें उसके फोकस पर, मतलब डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ, दैट्स व्हाई 1/infinity 0, therefore 1/f is equal to ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज कॉल्ड लेंथ मेकर्स फॉर्मूला। इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलेंगे कि 1/f इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन ईटा 1 1/r1 माइनस 1/r2। हियर ईटा 1 is the refractive index where object placed, and ईटा 2 we can say refractive index of the lens। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत नोटेशन चेंज कर दे तो ईटा 2 is the refractive index of lens and ईटा 1 is the refractive index where lens is kept। लेंस जो भी मीडियम में रखा है, यहाँ पर बोल देंगे कि ये ईटा 2 है तो ये ईटा 1, तो जिस मीडियम में हम लेंस रखे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद करो कि जिस मीडियम में लेंस है, एयर में है तो यहाँ पर एयर आएगा, वाटर में रख दे तो यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ईटा 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द लेंस। अब ये इक्वेशन को हम कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में कॉमन है, कंपेयर कर दे, देन वी कैन से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस है, लेंस फॉर्मूला माइनस में, मतलब 1/v माइनस 1/u। तो ये भी फॉर्मूला u v और f से रिलेटेड उसका रिलेशन होगा एज ए लेंस फॉर्मूला।